Hi guys, my name is Rohan Azad, and today we are going to talk about the math behind bias variance trade-off. First of all, I'll give you my quick personal profile. My name is Rohan Azad. I have a BTech in Computer Science and Engineering from UPTO Lucknow. I have an MBA from IIM Kozhikode. Additionally, I have done one-year data science certification from IIT Madras. Coming to my work ex, I have more than 8 years of work experience. I have worked in three companies so far. That includes private and public sector companies. My work profile includes data science, data analytics, and data consulting projects primarily. Currently, I am designated as an AVP data scientist in a leading public sector bank of India. Coming to the session content, so the topic of this session is bias versus variance trade-off and try to understand it in mathematical terms. So the content is divided into following parts. So सबसे पहले हम लोग बात करेंगे what is actually bias, then what is variance. Then हम लोग try करेंगे समझने का कि what do we actually mean by the trade-off between bias and variance. Then we'll go into the mathematical understanding and interpretation of bias, variance, and the trade-off of them using some equations and graphs. Then हम लोग also try करेंगे समझने का ये phenomena using some real life examples, right, to get a better understanding of this, so to say, complex concept. Then last में हम लोग check करेंगे कि are there any scientific or data science methods to achieve bias variance trade-off, right? So guys शुरू करते हैं. So bias in machine learning. So variance and bias both are actually errors in a machine learning model. And like any error, error is what? It is a difference between your actual value and the predicted value. Then what is actually bias and variance? So ये error का ही दो type है. So जब भी there is a machine learning model that works well, that does not work on the training data and as well as on the testing data, then हम कहेंगे कि वो machine learning model is in a bias, is a biased machine learning model. और ये किन सिनेरियोज में होता है मोस्टली? जब लेट से हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रेलिवेंट फीचर्स हैं उससे कम रेलिवेंट फीचर्स हों अपने पास अवेलेबल. सो लेट से आई टेक एन एग्जांपल कि एक कॉलेज है, उसमें देयर इज़ अ प्रोजेक्ट टू फाइंड आउट कि किस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए. सो हमारे पास दो रेलिवेंट फीचर्स है इस केस में. व्हाट इज़ द CGPA ऑफ द स्टूडेंट एंड व्हाट इज़ द फैमिली इनकम, राइट? सो आइडियली जिसका CGPA ज़्यादा हो और जिसका फैमिली इनकम कम हो, उसके लिए मशीन लर्निंग मॉडल को प्रिडिक्ट करना चाहिए कि उसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए. बट लेट से इन आर केस हमारे पास जो फीचर्स हैं वो है स्टूडेंट का नाम, उसके फादर का नाम, उसके एड्रेस का पिन कोड और उसका फ़ोन नंबर. सिर्फ ये चार चीज़ें हैं. तो हमारे पास कुछ भी रेलिवेंट फीचर नहीं है. और अभी इस केस में अगर हम एक मशीन लर्निंग मॉडल को हम प्रिपेयर करेंगे, सो डेफिनेटली इट विल नॉट गिव यू द एक्यूरेट आंसर्स. सो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को विल से कि द मशीन लर्निंग मॉडल इज बाइज्ड इन नेचर, क्योंकि हमारे पास कोई भी रेलिवेंट फीचर है ही नहीं. या इन अदर वर्ड्स वी कैन से वी हैव लेस नंबर ऑफ द रिक्वायर्ड number of relevant features we actually need, right? So the problem with bias in machine learning is it will lead to underfitting. So underfitting essentially happens when we assume something wrong with our data. For example, we are trying to write a machine learning model of a cubic equation, of a polynomial equation. And in actual, we write a model that actually creates a linear regressor. So हमारा basic assumption ही गलत हो गया, right? So उस केस में the model will go into the problem of underfitting और वो ट्रेनिंग डेटा पे भी काम नहीं करेगा और डेफिनेटली टेस्टिंग डेटा पे भी काम नहीं करेगा. और एक और इसका मेजर एट्रीब्यूट है, तो हमारा मॉडल बायस के केस में विल बी ओवरली सिंपलिस्टिक. सो लेट से हमारे पास 10 रेलिवेंट फीचर्स हैं और हमारे पास सिर्फ तीन ही हैं और उन तीन का ही यूज़ करके हमने प्रिडिक्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली हमारे जो प्रिडिक्शंस है वो गलत ही होने वाले हैं, राइट? So we'll move into the next part of error, that is variance. So it is like the slide says, it is another type of error. But the difference with bias in variance is the variance actually works well on the training data, but not on the testing data.
whereas in case of bias, it neither works on the training data and nor on the testing data. सो वेरिएंस का केस कब आता है? मैं आपको अगेन वही वाला एग्जांपल देता हूँ, स्कॉलरशिप वाला। तो हमारे पास दो रेलेवेंट फीचर्स थे, राइट? वन वाज द सीजीपीए, वन वाज द फैमिली इनकम। बट लेट से हमारे पास 8 और फीचर्स आ गए कि स्टूडेंट का नाम, फादर का नाम, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, जेंडर, देन उसने कौन से सब्जेक्ट्स लिए, उसकी ब्रांच क्या है, उसका कोर्स क्या है। सो हमारे पास ढेर सारे, लेट से 20 और इरेलीवेंट फीचर्स आ गए, और हमने उन सारे 22 पे ट्रेन कर दिया, 20 इरेलीवेंट एंड 2 रेलेवेंट। तो उस केस में क्या होगा, द मॉडल विल गो इनटू द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग, क्योंकि आपने बहुत सारा नंबर ऑफ फीचर्स पे उसको ट्रेन कर दिया है। सो वो सभी के पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेगा, और आपको एक फाइनल जो प्रिडिक्शन देगा, दैट विल बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रिडिक्शन, क्योंकि वो सारे के सारे 22 फीचर्स पे डिपेंड कर रहा है, जबकि एक्चुअली में आपके रेलिवेंट फीचर्स 2 ही थे। So if you look at the second last point, it is an overly complex model, and also it has been, in case of overfitting, the model gets overly influenced by the training data. So होता ये है कि जो हमारे 20 irrelevant features है, उनको noise भी बोलते हैं, because technically these are noise, right? Because they are of no use. So model आपका noise पे भी train हो जाता है, and it gets overly influenced by that noise also. सो इस केस में आपका जो प्रिडिक्शंस है वो गलत हो जाती हैं। एंड जब आप ओवरफिटिंग के केस में क्या होता है कि आपकी प्रिडिक्शन जब आप अनसीन डेटा पे ट्राई करते हो, जब आप नए डेटा पे ट्राई करते हो, तो वहाँ पे आपके एरर्स ज़्यादा आने लगते हैं एज कम्पेयर टू योर ट्रेनिंग डेटा एरर्स। The last point is the model becomes sensitive to small fluctuations in data, which we have already discussed, and it does not generalize well. Generalization का मतलब ये है कि that model doesn't follow the same behavior on different types of data sets. Ideally, when you write a model, and if it is a good model, it should work similarly in all the present data sets, right? अगर वो हर डेटा सेट में अलग अलग तरह से बिहेव कर रहा है, अलग अलग मैग्नीट्यूड के एरर्स दे रहा है, then definitely that generalization is not in place. And उस केस में we'll say कि there is a variance in the machine learning model. Coming to the next part, which is mathematical interpretation. So we'll begin with the graphs. So you can see तीन graphs हैं, दो wrong है, एक right है. We'll try to see ये दोनों wrong क्यों है और ये right है तो right क्यों है. So जो आपके जो blue dots हैं, this is actually your data. इसको training data बोल देते हैं. And जो red line है, that is actually your model prediction. सो एज यू कैन सी, आपका ट्रेनिंग डेटा तो इस पैटर्न में मूव कर रहे हैं, बट आपने एक रैंडमली एक सीधा लाइन खींच दिया। ऑब्वियसली दिस इज़ अ वेरी बैड मॉडल, और सिंस यू आर नॉट able to find the correct pattern in the training data, आपका ट्रेनिंग डेटा में ही फेल हो गया, तो इस केस को we'll call underfitting, which is also called bias. सेकेंड केस में देखते हैं, सेम ट्रेनिंग डेटा है हमारे पास, बट लेट, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मॉडल ने सारे के सारे डेटा पे लर्न करने का ट्राई किया, सब पे उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, उसने ओवर कॉम्प्लेक्स कर दिया, सारे के सारे जो नॉइज स्लैश इररेलेवेंट फीचर्स थे सबको लर्न करने की कोशिश की, और एक बना दिया उसने ओवरली कॉम्प्लेक्स मॉडल। सो ये आपका टिपिकल हाई वेरिएंस का केस है, क्योंकि ये आपका अभी इस डेटा पे तो चल जाएगा, राइट? क्योंकि आपका रेड लाइन एकदम ही फॉलो कर रहा है आपके ट्रेनिंग डेटा को, बट जैसे ही आपका टेस्टिंग डेटा आएगा, ये मॉडल इनएक्यूरेट प्रेडिक्शंस देना चालू कर देगा। तो द राइट सॉल्यूशन इज टू टेक अ बैलेंस बिटवीन द टू। अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग के कहीं बीच में आना पड़ता है, सो दैट आप ओवरली सिंपलिस्टिक भी ना रहें और ओवरली कॉम्प्लेक्स भी ना रहें। सो जो राइट मोस्ट फिगर है, विच हैज़ बीन मार्क्ड इन ग्रीन एज अ टिक मार्क, सो ये देखो क्लेवरली कितना अच्छे से इसने प्रिडिक्ट किया है। इसने सारे पॉइंट से लर्न करने का भी ट्राई किया है, और साथ ही साथ थोड़े पॉइंट्स से डेविएशन भी लिया है, ताकि ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम में ना ये फॉल करे, राइट? तो देखो इसने पैटर्न को फॉलो भी किया और ओवरली कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनाया। सो दिस फिगर ऑन द राइट इज द बेस्ट solution we have. Then we'll move into some equations, since we are focusing more on the mathematical interpretation of bias and variance trade-off. So हमारे पास तीन equations है, तीनों को we'll go in depth. So bias essentially is simple. It is a difference between your actual value and your predicted value.
ये वही इक्वेशन बोलने की कोशिश कर रही है. Variance is a little, I wouldn't say difficult, but little difference, little different. So variance in statistical terms is actually your dispersion in the data, right? So let's say हमारे पास 10 numbers हैं और वो सारे 10 numbers are in the range of 5 to 10. और सेकेंड केस में हमारे पास अगेन 10 numbers हैं और वो हैं in the range of 5 to 100 और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो वी नो दैट सेकेंड वाले केस में वेरिएंस ज़्यादा होगा क्योंकि वैल्यूज आर मोर डिस्पर्स्ड. सो वही चीज़ ये सेकेंड इक्वेशन कहने की कोशिश कर रही है. इट्स जस्ट दैट हमारे पास नंबर्स की जगह हमारे पास एरर का वैल्यू है. मैं आपको फिर से समझाता हूँ एक एग्जांपल लेके. मान लीजिए एक डेटा सेट है, उस पर आपको मशीन लर्निंग मॉडल अप्लाई करना है. तो आप क्या कीजिए, उस डेटा सेट को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए और एक पे आप अप्लाई कर दीजिए मशीन लर्निंग मॉडल. उससे आपको एरर आ जाएगा, उस एरर को नाम दे दीजिए एरर 1. तो और सेम मॉडल को आप बाकी सारे जो 4 आपके डेटा सेट्स हैं उस पर अप्लाई कीजिए और 4 और एरर्स ले लीजिए. एरर 2, एरर 3, एरर 4, एरर 5. तो अभी इन पांचों एरर्स का एरर 1 to 5 का आप वेरिएंस निकालने का कोशिश कीजिए. सो दैट वेरिएंस, listen to me very carefully, if that variance is of a very high value, then we can say that my machine learning model is behaving differently with different data sets, right? And if that variance value is small, then we can say that my machine learning model behaves similarly with all the present data sets and it has been generalized very well. So second equation आपका वही कहने का कोशिश कर रही है. So f dash x is actually your error and e of f dash x is actually your estimation of predicted values. और ये वही है जो जो बाकी 4 आपके एरर्स से आई है, राइट? तो बायस में आपका एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स है. एफ एक्स इज योर ट्रू वैल्यू और इस केस में एफ डैश एक्स माइनस एस्टिमेशन ऑफ एफ डैश एक्स. तो इस केस में आप वेरिएंस निकाल लो, द स्प्रेड ऑफ द एरर्स. I hope you get a good understanding of this. And the third equation is your model final error. इसको टेस्ट एरर भी बोलते हैं और इसका इक्वेशन है बायस स्क्वायर प्लस वेरिएंस प्लस इररिड्यूसिबल एरर. So essentially error can be divided into two categories. One is irreducible जो कि होता ही है मॉडल में, वो गिवन है, वो इनहेरेंट नेचर है मॉडल का, वो होगा ही. जो सेकेंड टाइप ऑफ एरर है दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिबल एरर और उसके दो टाइप्स हैं, बायस एंड वेरियस, जो कि हम दोनों जो कि दोनों चीज़ें हम लोगों ने अभी पढ़ी है. सो इसके ऑब्वियसली हमको दोनों एरर्स को ऐड करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द इररिड्यूसिबल एरर. और एक स्पेशल चीज़ ये है, इसमें बायस में आपको स्क्वायर भी दिखेगा. स्क्वायर का रीज़न ये है कि जस्ट लुक एट द ऑर्डर ऑफ द इक्वेशंस. इस केस में ऑर्डर इज़ 1, इस केस में ऑर्डर इज़ 2. सो वो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वी हैव पुट अ स्क्वायर ऑन द बायस वैल्यू, राइट? Now we'll go into the more mathematical part. So the idea is आपको ये जो एरर है ना LHS पे, इसको रिड्यूस करना है, इसको मिनिमाइज करना है. तो आपको ये तीनों वैल्यूज मिनिमाइज करनी पड़ेंगी इंडिविजुअली. एंड दिस आई ऑलरेडी सेड दिस इररिड्यूसिबल एरर इज अ कांस्टेंट. सो आपके पास सिर्फ दो ही वेरिएबल्स बचे. So you have to reduce the bias as well as the variance. But the tricky part here is as soon as you start decreasing the bias, you'll start increasing the variance and vice versa. That means if you start decreasing the variance, you will start increasing the bias. Let us look at it in form of a graph. Okay. So graph से पहले the topic is bias variance trade-off. Although मैंने इस पे already start कर दिया है. This is just theory. I'll quickly read out. So it is a fundamental concept in machine learning. The idea is to find a sweet spot between the oversimplicity, that is the bias part, and the overcomplexity, that is the variance part. In other words, we are trying to find out the just sufficient number of features. इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में. Now let us look into the graph. Just look at this left graph. So just listen to me very carefully, guys. This y-axis is my error. This x-axis is my data set quantity. So as you move along the x-axis from left to right, we are saying कि हमारे पास डेटा का क्वांटिटी बढ़ रहा है. और जब आप वाई एक्सिस में फ्रॉम डाउन टू अप जाते हो, मीन्स हमारा एरर बढ़ रहा है. सो जो हमारा ब्लू लाइन है दैट इज एक्चुअली योर बायस.
राइट? सो बायस, इफ वी ट्राई टू रिकॉल, हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या देखा था, क्या समझा था, कि जब हमारे पास ओवरली सिंपलिस्टिक मॉडल हो, जब हमारे पास बहुत ही कम फीचर्स हो, तो उस केस में बायस आ जाता है। राइट? तो देखिए इस वाले केस में थोड़ा लेफ्ट में अगर हम शुरू करेंगे, तो बायस देखिए बहुत ज़्यादा है। बट एज सुन एज हमारे पास डेटा आना चालू हुआ, तो हमारा बायस घटने लगा, और इतना घटने लगा कि काफ़ी कम हो गया जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा आ गया। राइट? बट वेरिएंस के केस में उल्टा होता है, जब हमारे पास डेटा ज़्यादा आने लगता है तो वेरिएंस बढ़ता है, क्योंकि हमारे पास नॉइज़ का डेटा भी आने लगता है और मॉडल उस पर भी ट्रेन होने लगता है। राइट? नॉइज़ पे ट्रेन होने लगता है, ओवर फिटिंग हो जाती है। जस्ट ट्राई टू रिकॉल व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। सो ये दोनों एकदम ही एक्सट्रीम्स में ऑपरेट करते हैं, एकदम ही वाइस वर्सा, और यू कैन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनली फॉलो करते हैं एक दूसरे को। सो और हम लोगों ने पीछे देखा कि यहाँ पे हमको बायस प्लस वेरिएंस को मिनिमाइज करना है। तो बायस प्लस वेरिएंस मतलब ये ब्लू लाइन प्लस ये रेड लाइन का समेशन इज दिस येलो लाइन। राइट? आप देखने का कोशिश कीजिए, ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू बराबर ये वैल्यू है। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हैं तो आपकी टोटल एरर भी कम होती जा रही है, और ये आपको एक यू टाइप का फिगर देगा, दिस येलो लाइन इज एक्चुअली योर फाइनल एरर वैल्यू, और इसी को मिनिमाइज करना है। So as you can directly see from the graph, so there is a sweet spot called this at the middle, जहाँ पे आपका येलो इज एट द मिनिमम वैल्यू, और ये दोनों बायस एंड वेरिएंस जस्ट एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सो हमारे इस स्वीट स्पॉट पे क्या हो रहा है, बायस इज जस्ट ओके, वेरिएंस इज जस्ट ओके, जस्ट एक्सेप्टेबल। दोनों में से कोई भी एक ज़्यादा नहीं है एक्सेप्टेबल लिमिट से। तो यही हमारा स्वीट स्पॉट है, जो कि हमको इस ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है। राइट? आई होप आपको ये फिगर अच्छे से समझ में आया हो। नाउ ये जो राइट वाला फिगर है, दिस इज एक्चुअली एन एग्जांपल टू गेट अ मोर अंडरस्टैंडिंग, मोर generic understanding on bias and variance. So basically these are figures of a dart game. So dart game में क्या होता है, आपके पास एक डार्ट होती है, एक सॉर्ट ऑफ एन एरो, और उसको आप एक बोर्ड पे मारते हो, और बोर्ड के सेंटर में हिट करना होता है। सो यहाँ पे भी आप बायस और वेरिएंस का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। राइट? तो बायस इसेंशियली मीन्स योर एक्यूरेसी, आप कितना नज़दीक हो सेंटर वाले डॉट से, एंड वेरिएंस ऑन द अदर हैंड इज योर कंसिस्टेंसी। इट डज नॉट, वेरिएंस डज नॉट मीन कि आप एक्यूरेट हो कि नहीं हो। वेरिएंस मतलब है आप कंसिस्टेंट कितना हो, भले ही आप गलत मार रहे हो, बट आप कॉन्स्टेंटली गलत मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो सेम जगह पे, वो वेरिएंस है। सो देखिए, आप ये वाला साइड देखिए, राइट वाले में ये दो सेल्स, सो दोनों में ही हमको दिख रहा है कि ऑफ है टारगेट, हम बिल्कुल भी नहीं मार पा रहे हैं। राइट? ये हमारा सेंटर है, और दोनों में ही दूर दूर जा रहा है हमारा डॉट। बट द स्पेशल थिंग, द डिफरेंशिएटर इन दीज टू फिगर्स इज, यहाँ पे हमारा वेरिएंस कम है, ऑल्दो माई टारगेट इज वेरी ऑफ, बट एटलीस्ट आई एम कंसिस्टेंटली हिटिंग द रॉन्ग टारगेट। राइट? सो दिस फिगर will be high bias and low variance. Right? In this figure it is high bias and high variance, क्योंकि हमारा ऑफ भी है, और हम कंसिस्टेंटली वो ऑफ भी हिट नहीं कर रहे। ओके? अभी यहाँ पे आते हैं लेफ्ट में। सो हमारा देखो, सेंटर के अराउंड ही हम लोग हिट कर रहे हैं। राइट? तो इट इज़ डेफिनेटली लो बायस, जो कि ये वाला लेबल कहता है। द डिफरेंशिएटर हियर इज, यहाँ पे कंसिस्टेंटली वो सही टारगेट पे मारा जा रहा है, और यहाँ पे सही टारगेट पे मार रहा है बट कंसिस्टेंटली वो नहीं मार रहा है। तो यहाँ पे ये हाई वेरिएंस है और यहाँ पे लो वेरिएंस है। So our idea is to come around this figure while playing a dart game and while building a machine learning model. हमारा लो बायस रहे, लो वेरिएंस रहे, और ये कहाँ पे आता है, इस वाले स्वीट स्पॉट पे आता है, क्योंकि यहाँ पे अपना येलो लाइन का मिनिमम वैल्यू अचीव होता है। राइट? ओके, बिफोर गोइंग इनटू द नेक्स्ट स्लाइड, मैं आपको uh, थोड़ा सा और ओवरव्यू देने का ट्राई करता हूँ, डीपर अंडरस्टैंडिंग, कि कोई भी मॉडल है, ओके, बायस वेरिएंस को हम एक तरह से और देखने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी मॉडल है, हम बोल रहे हैं कि वो हाई बायस है, फाइन, मान लिया हाई बायस है, मतलब वो कभी भी एक्यूरेट वैल्यूज़ नहीं दे रहा है। बट ये हो सकता है कि वो इनएक्यूरेट वैल्यूज़ ऑल्दो दे रहा है, बट वो कॉन्स्टेंटली उतनी दे रहा है।
मतलब वो मान लो 10 का एरर दे रहा है, 10 RMSE या MSE आर स्क्वायर जो भी आ रहा है आपका, मान लो 10 आ रहा है RMSE वैल्यू, बट वो कॉन्स्टेंटली 10 दिए जा रहा है अक्रॉस ऑल द डिफरेंट डेटा सेट्स. So that model will have high variance, sorry, high bias, but low variance. क्योंकि आपका जो error है ना 10 10 10 10, वो is not really spread out, correct? Whereas आपका, अगर मैं बात करूँ कि हाई बायस भी है, मतलब कि वो इनएक्यूरेट भी है, बट उसका एरर्स ऐसा है 10 20 100 150 300. सो इस केस में उसका वेरिएंस भी ज़्यादा हो गया क्योंकि अभी ऑफ भी जा रहा है और उसका डेविएशन भी ज़्यादा है, उसका डिस्पर्जन भी ज़्यादा है, राइट? तो आप इसको इस फिगर से थोड़ा रिलेट करने का कोशिश कीजिए मशीन लर्निंग मॉडल को, आपको बेटर तरह से समझ में आएगा बायस एंड वेरिएंस का क्या मतलब है, राइट? नाउ वी लुक इनटू सम रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ बायस वर्सेस वेरिएंस ट्रेड ऑफ. सो मैं आई ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट्स एंड माई सेल्फ कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, एकेडमिक टॉपिक है मशीन लर्निंग का या अदरवाइज, सो उसको ऑलवेज ट्राई टू रिलेट इट विद सम रियल लाइफ एग्जाम्पल. क्योंकि अगर आप उसे रिलेट कर पाओगे ना तो आप उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ पाओगे. सो मैंने दो एग्जाम्पल्स लिए हैं टू बेटर अंडरस्टैंड बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ. वन इज जिमिंग एंड वन इज पेरेंटिंग. सो जिम में हम लोग क्या बोलते हैं कि एवरीबडी रिकमेंड्स अस कि जिम जाना चाहिए, राइट? तो बट क्वेश्चन इज जिम कितना जाना चाहिए, क्योंकि जिम कम जाएंगे तो भी नुकसान है, जिम ज़्यादा जाएंगे तो भी नुकसान है. कम जाएंगे तो हमारे बॉडी में फैट आने लगेगा, लिथार्जी आने लगेगी, राइट? डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाएगा, राइट? और ज़्यादा जाने लगेंगे तो मे बी मसल पुल हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, राइट? तो जिम ज़्यादा जाने में भी प्रॉब्लम होता है. सो अगेन द आइडिया इज़ टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट. इतना स्वीट स्पॉट आप फाइंड आउट कीजिए कि आपको जिम, लेस जिम जाने वाले प्रॉब्लम से भी आप बच जाओ और ज़्यादा जिम जाने वाले प्रॉब्लम से भी बच जाओ. जस्ट लाइक वी डू इन बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, राइट? बायस से भी बच जाओ, वेरिएंस से भी बच जाओ. सेकेंड एग्जाम्पल इज पेरेंटिंग. सो पेरेंटिंग में भी काफ़ी रिसर्च और ओपिनियंस लोग देते हैं कि पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना चाहिए या लीनियंट होना चाहिए, क्योंकि लीनियंट होने के साथ भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. किड्स माइट नॉट नॉट पुश देमसेल्व्स टू बिकम बेटर ह्यूमन बींग्स. वो लोग चीज़ों को लाइटली लेने लगते हैं. और स्ट्रिक्ट होने की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स है. दे माइट नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली, और मे बी टॉक्सिसिटी ज़्यादा आने लगती है फैमिली में, राइट? सो अगेन द आइडिया इज टू फाइंड अ स्वीट स्पॉट बिटवीन द लीनियंसी एंड द स्ट्रिक्टनेस, कि आप इस तरह वाले डिसएडवांटेज से भी बचो और इस तरह वाले डिसएडवांटेज से भी बचो, राइट? तो मतलब आप डेली लाइफ में आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो. आई पुश यू टू थिंक ओवर इट एंड फाइंड आउट कि कहाँ पे आप एक्सट्रीम से बच के आप एक स्वीट स्पॉट फाइंड आउट करते हो. और इसेंशियली मशीन लर्निंग मॉडल भी वही ट्राई करता है करने का. Okay, so I think we are moving towards the last part. Methods to achieve bias variance trade-off. So there are multiple methods although, but तीन काफ़ी famous and popular methods है. So first is ensemble methods, जिसमें आते हैं bagging and boosting. So ensemble essentially is not relying on a single machine learning model, but a series of, rather a collection of machine learning models. सो बैगिंग का एक एग्जाम्पल रैंडम फॉरेस्ट है, जिसमें आप एक मल्टीपल नंबर ऑफ डिसीजन ट्रीज बना लेते हो और सबका जो आपका प्रिडिक्शन है उसको आप एवरेज आउट या तो उसका मोड ले लेते हो, राइट? बूस्टिंग के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है कि रादर देन रनिंग द मल्टीपल बेस लर्नर्स ऑल टुगेदर, यू रन देम सिक्वेंशियली. सो आप एक रन करोगे, उससे जो एरर्स आएगी वो सेकेंड मॉडल रन कर लेगा एंड बेटर कर देगा. सिमिलरली थर्ड वाला सेकेंड वाले के मॉडल एरर्स को करेक्ट कर देगा. सो ऐसे ऐसे जो लास्ट में आपका बेस लर्नर होगा वो दैट विल बी हाईली एक्यूरेट. Second method is L1 and L2, lasso and ridge respectively. Essentially दोनों में क्या करते हैं, the basic understanding is to reduce the number of irrelevant features. जैसा मैंने आपको बताया था फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास 22 फीचर्स थे, राइट? 2 रेलिवेंट थे और 20 इरेलीवेंट थे. सो जब आप L1 L2 को अप्लाई करोगे ना, तो जितना भी आपका नॉइज़ वाला फीचर है वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट? तो आप फालतू में अननेसेसरीली आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल को आप नॉइस पे ट्रेन नहीं करोगे. ये L1 L2 आपको फीचर देता है. एंड थर्ड, better feature selection, like if you have a better domain knowledge on the problem you are dealing with,
लाइक इन केस ऑफ स्कॉलरशिप, अगर आपको पता है कि फैमिली इनकम और योर CGPA ही शुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर बिहाइंड गिविंग समबडी अ स्कॉलरशिप और नॉट, देन उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। तो आप डायरेक्टली आप बेटर फीचर ही सेलेक्ट कर लो और जो इरेलीवेंट है उसको डिस्कार्ड कर दो। Yeah, I guess we have finished this slide. So my name is Rohan Hassan. I hope आपको ये concept bias versus variance trade-off समझ में आया होगा। Thank you.